एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन का मतलब है कि सरफेस के ऊपर आके एटम्स का लगना। The atoms are coming to the substrate and they are causing getting adhere. Surface पे आके adhere. So that is why the word adsorption is there. So when the previous class we started, how is this thing happening? It is based upon van der Waals force. It means when two atoms come, there is an attraction and repulsion taking place, and ultimately they form an equilibrium state. इसी प्रोसेस को लोग एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, लेकिन देयर इज समथिंग लिटिल बिट मोर कॉम्प्लेक्स थिंग्स अबाउट इट. एब्जॉर्प्शन को वी कैन classify absorption into two different categories, A and B. A is called physical absorption or field desorption. Physisorption or physical absorption. And the second one is called chemisorption. और chemical absorption. दोनों में डिफरेंस क्या है? मतलब name itself you can understand. Second में chemical reaction होता है, पहले वाले में there is no chemical reaction. पहले वाले में क्या होता है? The first one is associated with VWB, van der Waals bonding, but the second one is associated with charge transfer. Charge transfer. There is some sort of chemical reaction taking place. So usually in the formation of a molecule with the help of atoms, जो हम लोगों ने previous class में डिस्कस किया था, when two atoms are coming closely together to form an atom, the energy is approaching. एनर्जी को हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं, attractive and repulsive energy. And this is the point where the two atoms are at equilibrium. So R0. So this process, van der Waals force, it takes place in the case of the first one. Exactly this sort of process. ऊपर के जो air atoms होते हैं, these are called air atoms. मतलब जो अगर फिल्म बनाएंगे अल्टीमेटली, those atoms they get involved with the atoms on the surface. Surface पे भी तो atoms होते हैं. We have the surface atoms. तो इन air atoms और इन surface atoms के बीच physisorption के लिए van der Waals force काम करता है. सेकेंड वाला जो है chemisorption, उसमें भी इस तरीके the same thing actually takes place, but since there is a chemical reaction
इन्वॉल्व, तो उसमें हल्का सा एक चेंज होता है, वो है कि क्लॉट हैज़ एन एक्सटेंशन ऐसे ये वाला, दिस इज represents a chemical reaction मतलब हो तो रहा है, एडम आके स्टिक कर रहा है, लेकिन इनिशियली आफ्टर द केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, सो दिस इज वैलिड फॉर केमिकल, ठीक है, ये जो डिफरेंस है। इसमें से स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, which one do you think is the stronger phase option, of course, because it is important. Now ये जो phase option है और deposition of films, we are now talking about thin film deposition. डिपोजिट कर रहे हैं उसमें प्रोसेस एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसफर प्रोसेस, और देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स बाय विच यू कैन डिपोजिट। फेज एब्जॉर्प्शन में बेसिकली, क्योंकि इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, यू हैव समथिंग कॉल्ड PVD, फिजिकल वेपर डिपोजिशन, और करेस्पॉन्डिंगली अगर केमिकल हो रहा है तो उसमें क्या होगा, CVD। वन इज अ फिजिकल वेपर डिपोजिशन, अनदर वन इज अ केमिकल वेपर। फिजिकल वेपर डिपोजिशन में जो सबसे कॉमन जो है, that is called evaporation. आज हम लोग PVD डिस्कस करेंगे। एक है evaporation, दूसरा है स्पटरिंग। नॉर्मल इवेपोरेशन में क्या होता है, पानी इवेपोरेट करने पर यू सप्लाई हीट एंड इट गोज अप द व्हाटएवर सब्सटेंस इज, तो द सेम प्रोसेस इज बीइंग अप्लाइड है, सिर्फ यहाँ पे क्या कर रहा है कि हीट देने के बाद व्हेन यू आर हैविंग टू ऐड एटम्स, हम उसके क्लोज्ड चेंबर में एक सबस्ट्रेट दे देते हैं, यहाँ से हीट हुआ, ऐड एटम्स गया और यहाँ पर आके imagine a situation like this, एक ऐसा closed chamber है, तुमने यहाँ पे एक sample दिया है, the one which needs to get evaporated, and we have supplied some sort of heating. Current pass करके वो heat करेगा। What will happen? And this is where this is the substrate. यहाँ तो उल्टा है, substrate ऊपर है, evaporate ऊपर की तरफ होगा। यहाँ पे क्या होगा? ये सारे एटम्स बने, वो जाके ऊपर जाके they will get stick on the surface, and ultimately you are supposed to get a film. This is what is going to happen. लेकिन यहाँ पे तो देखना पड़ेगा कि ये जो मैंने enclosed region ड्रॉ किया है,
It's called a chamber. इसको मैं बोलता हूँ, it's called a chamber. Deposition chamber. यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है। चेम्बर में गैस मॉलिक्यूल्स नहीं है, एयर मॉलिक्यूल्स नहीं है, there air molecules. So when these molten atoms or the vaporized atoms are produced, इसके अंदर जो एयर है, they will react with it. तो तुम्हारा जो evaporation का process है, that will be hampered. That is why what we need to do, we need to take out the air. How do we take out the air? By means of a pump, that is creating a vacuum. So we will take out the air from the chamber by means of a pump to create something called a वैक्यूम में कितना सी होता है, कितना यू होता है, कंफ्यूज रहता है, डबल सी वन सिंगल यू होता है। वैक्यूम राइट। अच्छा, हाउ डू वी नो दैट हाउ मच वैक्यूम इज क्रिएटेड, कितना वैक्यूम होता है? दैट इज थ्रू एयर प्रेशर। पंप का जो प्रेशर है ज़्यादा प्रेशर मतलब जितना कम प्रेशर ज़्यादा। तो दिस प्रेशर हैज़ अगेन गॉट यूनिट्स, जैसे मिलीबार है, टॉल है, एमएलयूटीजी है। तो यूजुअली देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वैक्यूम. वन ऑफ देम इज कॉल्ड हाई वैक्यूम. एक तो सिंपल वैक्यूम हो गया, दूसरा हाई वैक्यूम, एक होता है अल्ट्रा हाई. मिलीबार इज वन यूनिट. तो हाई वैक्यूम इज अबाउट 10 to the power -6 millibar. Approximately equal to 1 pascals. Pressure. Ultra high vacuum is 10 to the power -9 and above. इवापोरेशन में अल्ट्रा हाई वैक्यूम की जरूरत नहीं है, ये नहीं ज़रूरत होता है, लेकिन नॉर्मली दिस इज फॉर द एपिटैक्शियल ग्रोथ. व्हेन वी आर कंसिडरिंग एन एपिटैक्शियल ग्रोथ, एपिटैक्शियल ग्रोथ मतलब हाई प्रिसिशन ग्रोथ. एक एक एटम यहाँ पे मैटर करता है, वहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा वैक्यूम देते हैं. अगर वैक्यूम अगर नहीं दिया तो क्या होगा? इट विल कोलाइड. सो देयर मस्ट बी अ पैरामीटर व्हिच सेज दैट ओके माय वैक्यूम इज इट विल नॉट कोलाइड. कोलिशन हुआ कि नहीं, ये जो एटम्स जो एटम्स बने हैं, और मान लो यहाँ पे एयर है, वेदर इट विल कोलाइड विद द एयर मॉलिक्यूल और नॉट, इसके पीछे देर इज अ पैरामीटर. उस पैरामीटर पे जाने से पहले लेट अस फर्स्ट एज्यूम दैट द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द सबस्ट्रेट इज L, कैपिटल L. दोनों के बीच का डिस्टेंस L है. एंड देयर इज अ पैरामीटर कॉल्ड MFP.
Can somebody tell me what this MFP means? Mean free path. It stands for mean free path. What is a mean free path? Mean free path is the distance traveled by an atom between two positions. यहाँ पे एक लाइन हुआ, यहाँ पे एक लाइन हुआ. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ट्रेवर्स के लाइन्स mean free. So let me just denote this by parameter lambda. What is the our between two positions. Okay, it has to travel some distance. अगर भीड़ भाड़ जगह में मान लो बहुत लोग एक्सीडेंट करें, दो एक्सीडेंट के बीच कितना डिस्टेंस वो लोग ट्रैवल करेंगे इसी तरह से. Now I have two different parameters. One is L and one is lambda. Now tell me which one should be more if I don't want any collision to take place between the atom and the air molecules. Lambda और L में से कौन सा बड़ा होना चाहिए if I would like to avoid collision? Lambda. है ना? मैं अगर यहाँ पे दो कार मान लो, there is two cars, एक कार यहाँ पे आ रहा है और एक कार यहाँ पे आ रहा है. They are colliding with each other. चलिए ऐसे एक कार यहाँ पे collision already किया है. One car has already collided with another car, and it is supposed to collide with another car after this amount of distance. तो मैं अगर रास्ते का साइज मैं अगर इन दोनों के बीच कर देता हूँ तो इसका मतलब कोई collision होगा ही नहीं, क्योंकि उसको तो वो डिस्टेंस को ट्रैवल नहीं कर पाएगा. The same thing is happening here. If I make lambda more than L तो कोलाइड करेगा ही नहीं, है ना? ये जो वैक्यूम प्रोसेस है ये बेसिकली रिमूविंग ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स, जितने एयर मॉलिक्यूल्स रिमूव कर दूंगा उतना कोलिजन के चांसेस कम जाएंगे. सो लैम्डा शुड बी मोर देन L और इसका एक पैरामीटर है इसको हम लोग बोलते हैं लैम्डा बाई L शुड बी मोर देन 1. आई कैन ऑल्सो राइट इन दिस फैशन. Lambda by L should be more than 1, and this lambda by L इसको we call it by a name, इसको बोलते हैं Newton number. KNUTSN. Newton number. The Newton number should be more than 1. This is the condition. Newton number बोलते हैं और ये जो अच्छा it's not that कि I will only evaporate one type of material. I can have a combination of different types of material. So मेरे पास एक source नहीं होती, मेरे पास अलग-अलग source हो सकता है. I can have more sources than this. सबका अपना अपना यस और एक सबके ऊपर एक शटर लगा रहता है. Suppose there are 3 chambers, but first I would like to deposit, suppose A, B, C, A, C. मैं चाहता हूँ कि पहले A डिपोजिट हो, उसके बाद B हो, उसके बाद C.
तो उस हिसाब से मैं शटर को ओपन और क्लोज कर सकता हूँ। I can have multi layers of it. एक लेयर ये बन गया, तो कैसे ऐसे मतलब if I like to have ABC एक साथ AB पहले इसको, तो ये जो अलग अलग सोर्सेज ऑफ मटेरियल है और ये जो सिलेंड्रिकल होल्डिंग सेगमेंट है, इसको बोलते हैं फ्रॉम दैट नेम वी आर कॉल्ड न्यूस्टेन सेल्स। They are called न्यूस्टेन सेल्स। Okay, so what we have done initially, we have evacuated the chamber using that one. Then we have supplied the material to be deposited inside the chamber, and then we have supplied heat. So evaporation में जब लोग heat supply करते हैं, there are 5 different ways by which you can supply heat. मतलब किसी को गर्म करना है, कैसे लोग गर्म कर सकते हैं? There are 5 different ways. A, B, C, D, E. एक हो गया through the passage of current, resistance. करंट पास होगा, रेजिस्टेंस होगा, तो I square R है ना, I square RT generated. That is called resistive heating. There is something called inductive heating. Induction transformers में होता है. That is called inductive heating. ठीक है। दूसरा एक हीटिंग होता है विद द हेल्प ऑफ आयन बीम्स, इलेक्ट्रॉन बीम। तो यू अलाउ सम इलेक्ट्रॉन बीम्स टू फॉल ऑन देम। बेसिकली हीटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इवेपोरेट, सो यू कैन हैव सम इलेक्ट्रॉन बीम। Use of EB. और दो था उसको याद किया रहने नहीं मुश्किल। Right. लेज़र, इस इलेक्ट्रॉन भी लोगों ने यूज़ किया, इस तरह से हम लोग लेज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। सबका ऑब्जेक्टिव वही है, टू मेल्ट इट और टू इवापोरेट। और लास्टली एक चीज़ आर्क जानते हैं जिसको बोलते हैं ग्लो डिस्चार्ज और आर्क। ट्यूबलाइट में जो होता है तो ज़्यादा तो वोल्टेज लेकर starts to emit ions. So these are the 3 different, the 5 different ways by which you can supply heat. It is called resistive heating. It is called inductive heating. L. ये हो गया R. ये हो गया E. ठीक है। इलेक्ट्रॉन बीम यूज करके, देन लेजर यूज करके, एंड आर यूज करके। डिपेंड करेगा व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल यू आर यूजिंग, सिचुएशन डिपेंड करेगा, बिकॉज देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ इवेपोरेशन। एग्जांपल 5, जैसे तुमको अगर कोई रिफ्रैक्टरी मेटल, टंगस्टन नाम एक मेटल है, तो रेजिस्टिव हीटिंग से काम होता है। लेकिन कोई इंसुलेटर अगर यूज करना है, इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, तब रेजिस्टिव हीटिंग से
ठीक है, आपको इस बार एक बार देख लो, if you have any doubts, you can just ask me. इसके बाद I will just give you an MCQ. कितना हुआ है, MCQ